Hello, assalamu alaikum, good evening and welcome to the Pavilion. आप देख रहे हैं sports and the ARY's app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. And we have news that is Sri Lanka has cleaned up England in this encounter. And it's been a really great game of cricket. We're going to talk about that. With me joining in the Pavilion, I've got four former captains of Pakistan, four outstanding cricketing minds who analyze games with us over here. And four gentlemen who've served the game of cricket and Pakistan really well. First up, I've got one of the finest fielders, a great middle order batsman, finisher of games, captain for Pakistan, the young dynamic Shoaib Malik. Shoaib, good evening and welcome. Good evening. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. With that, the glue that held Pakistani batting disorder together every time that we had collapses, holding one end strong, the most successful test captain of Pakistan's test cricket history. I've got Misbah. Good evening and welcome. Good evening, ji. Assalamu alaikum. Another outstanding captain of Pakistan, kept wickets for Pakistan with more than 400 dismissals behind the stumps, 69 test matches, 200 plus ODIs, and served the game of cricket and Pakistan really well. Moin Khan. Moin, good evening and welcome. Good evening. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. And finally, the Shah himself, the Sultan of Swing, the cricket royalty, none other, you all know, the king of all all-rounders, Wasim Akram. Good evening and hello, Wasim. Good evening. Assalamu alaikum. All right, folks, let's take a look at the match summary. सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था. ये रहा आपके सामने स्कोर कार्ड. इंग्लैंड won the toss, elected to bat. We were thinking कि कोई बहुत बड़ा स्कोर होगा, but I'm left speechless with that. 156 all out for England. Stokes there putting in 43 runs. Eventually he got out as well. But Bairstow, Malan, nobody really fired up. But look at the Sri Lanka bowling card. Look at that. Those figures are really, really very, very impressive. Everybody coming to the party. And especially, look at that. Matthews, 2 for 14 in 5 overs. The Angelo Matthews factor showing in this game already. For Sri Lanka, it was Nisanka with a great innings of 77. That partnership between him and Samara Vikrama just fantastic. Putting it all behind in 25.4 overs. Willie picking up 2 wickets for 30. Sri Lanka winning this one by 8 wickets. Just fantastic performance there by Sri Lanka. आइए साथ ही में नजर डालते हैं point table. So here's the updated points table after Sri Lanka's win today. Look at that. India again sitting right on top with 10 points, undefeated. South Africa with 8, but a great run rate that they have, 2.37 net run rate. New Zealand at the 3rd place, again with 8 points with 1.48. Australia sitting on the 4th place there, and Sri Lanka climbing to the 5th place, pushing Pakistan down, and England goes to the 9th place. This is becoming now, we can see what's happening on top of the table, and we can see pretty much what the 4 teams on the top look like. But that 4th spot there, it's still available. However, Australia now are looking really, really dangerous. But Sri Lanka, all of a sudden, well, they've come to the party. It looked like a very different Sri Lanka team today. And mind you, they do have the capacity to take on any team in Asian conditions. Top 4 teams will go into the semi-finals. That's what we know. And that's how your points table is looking this evening. All right, Wasim, let me bring this to you. What has happened to England? Total devastation. Their batting was all over. It wasn't the best. It was a typical wicket. We spoke about it in the morning. Average score was 324 first inning. And we've seen so many sixes has been hit, especially in this ground in last 4-5 games. Or just batting, and credit to Sri Lankan bowlers. एक बंदे ने पूरी टीम का कॉम्बिनेशन बना दी है. If you look at it, Angelo Matthew ने आके, और पता नहीं इसको क्यों नहीं रखा था स्क्वाड में. What do the selectors think? The Sri Lankan selectors, they had young players. They wanted somebody in the middle order who can carry the bat at times, win the game for them. And of course, he's a useful bowler. He has been bowling since last Lankan Premier League. And these 2 wickets, they were the game changer. And of course, a run out as well when he bowled beautiful. He's not very sharp, but experienced. Back of a length, winning the stumps. And I think his spell made the difference. Couple of wickets early on with the new, England were 1 for 44 at one stage. Yeah. They were cruising, kind of cruising.
and then suddenly the wickets started falling with regular intervals, और वो recover कर ही नहीं पाए. As a bowler, I need to ask you this. Angelo Matthews did not bowl since ODI since March 2020. Yeah. So here he is back in the World Cup squad. But he was bowling consistently in LPL with the new Lanka ball. No, but that's 20 overs ना in an ODI. तो मैं ODI का आपके साथ fact share चार पांच ही ओवर किए हैं उसने. जी. यूजुअली T20 में 4 होते हैं. ये IPL में क्या करता था, ये भी कैंडी टीम के लिए पहला नया बॉल से 3 ओवर करता और 2 अच्छे किए और विकेट लेता था, ब्रेक उतराता था, फिर चौथा इसको दे देते थे. बट ही वाज वही चेंज ऑफ पेस, बिट ऑफ सीम and everything. I think एक मैच में इसने बाबर को भी शायद कॉट बैन किया था, if I remember. Yeah, he's just a lot of experience there. And you're right, Misbah, how important is that what Wasim just said, कि एक आदमी के आने से आपका पूरे का पूरा जो टीम का composition है वो change हो जाता है. All of a sudden you can bring a lot of balance or you can completely take the entire team out of balance. बिल्कुल. और मेन परफॉर्मर रहे हैं इनके, मिडल ऑर्डर में बड़ा ज़बरदस्त फिनिशर भी हैं. और इसके एंजेलो मैथ्यूज के आने से ऑब्वियसली मैं जो हमेशा बात करता हूँ ना, आपकी जो बाकी बैटिंग लाइनअप है उसको और फ्रीडम मिल जाती है. उनको पता है कि नीचे एक ऐसा बंदा है कि अगर सिचुएशन कोई डिमांड करेगी तो वो गेम को कंट्रोल कर सकता है. तो आज हमने देखा कि मुश्किल पिच के बावजूद फ्रीडम से खेले हैं बैट्समैन. ऊपर से सदीरा को वो फ्रीडम चाहिए. ये जरा देखें ना, ये जरा लेंस देखें क्या हिट कर रहे हैं. My question is the pitch. You think pitch was that difficult, guys? I don't think so. They just bowled well. And England looked out of touch. वसीम भाई, it clearly shows कि जो 2 ओपनर्स थे, जॉनी बेस्टो और डेविड मलान, both of them got the start. एक ने 30 किए 31 बॉल्स में और डेविड मलान 28 runs in 25 balls. So they both got the start. और ऐसा स्टार्ट अगर मिला हुआ हो तो आई गेस, और ऐसा ग्राउंड हो जहाँ पे इतने सारे सिक्सेस लगे हैं इन द लास्ट फ्यू गेम्स, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं इस वेन्यू पे, तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो है. और इसलिए इन्होंने 156 भी किए थ्रू आउट द वर्ल्ड कप. ऑल देयर बैटर्स दे स्ट्रगलिंग, और कोई भी फॉर्म में जो है वो नहीं. वो डेविड मलान ने बनाए थे, 100 बनाया था, जो रूट ने बनाया रन्स, बट उसके अलावा कोई भी ऐसा बैटर नहीं है इस पूरे बैटिंग लाइनअप में जिसने परफॉर्मेंस की हो. और वो मतलब ऐसी भी नहीं है कि 30s 40s भी नहीं किए हुए कि थोड़ा सा भी इन्फॉर्म हो ये लोग. लेकिन यहाँ पे वी मस्ट गिव क्रेडिट टू श्रीलंकन बॉलर्स. ये उनका वीक लिंक है एज कम्पेयर टू देयर बैटर्स. तो ये एक ऐसा वीक लिंक है, बट द क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू देम. द वे दे बोल्ड टुडे, द वे दे फील्डेड टुडे, आई गेस हैट्स ऑफ टू देम. मुझे लगता है जो आपने विकेट की बात की है, थोड़ा सा श्रीलंकन टाइप की कंडीशंस बिल्कुल थी. बॉल थोड़ा सा रुक रहा था, उस तरीके से ट्रू नहीं आ रहा था. बट मुझे लगता है कि श्रीलंकन जो बॉलर्स ने उन्होंने बड़ा अच्छा असेस किया. उन्होंने अच्छी जगह पे बॉल किया और वो हिट थ्रू द लाइन जैसे नॉर्मली इंग्लैंड के प्लेयर करते हैं वो नहीं आ रहा था बॉल. थोड़ा और इसको बिल्ड करना चाहिए था उनको. इसको थोड़ा इलैबोरेट कर दें मिसबाह, जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए. आपने कहा उन्होंने पिच को असेस किया और उन्होंने अच्छी जगह पे बॉल कराई. व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन कि अच्छी जगह पे बॉल कराई? कि 6 मीटर शॉट थे, 5 मीटर, क्या हाउ वाज इट? जैसे आपने एंजेलो मैथ्यूज की बॉलिंग देखी है, उन्होंने वही 5 to 6 मीटर्स लेंथ पे बॉल किया. उन्होंने बहुत करीब बॉल नहीं किया, रूम ज़्यादा नहीं दिया, और वहाँ से बॉल ऑड बॉल थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा और रुक के बॉल आ रहे थे शुरू में. तो इंग्लैंड ने जैसे ही थोड़ा बेहतर स्टार्ट उनको नज़र आया तो दे गो हार्ड. और फिर वो विकेटें गिरी हैं तो सडनली फिर नए आने वालों के लिए बिल्कुल रोटेशन भी मुश्किल हो गई. शॉट बनाने गए हैं, उसमें विकेटें गिरती गई हैं और प्रेशर और बिल्ड होता गया. और पीछे उनकी बैटिंग लाइनअप में कॉन्फिडेंस था नहीं, किसी ने रन्स नहीं किए हुए थे और लग रहा था उनको बॉलिंग की वजह से स्कोर हमने यहाँ पे ज़्यादा करना है. तो इस सारी ऐसी सिचुएशन में वो लंबे स्कोर के चक्कर में बीच में काफ़ी उनकी विकेटें गई, खिचड़ी बन गई बेसिकली. एंजेलो मैथ्यूज की ठीक है, ही इज़ अ वेरी स्किलफुल प्लेयर, ही इज़ वन मैनी गेम्स फॉर श्रीलंका. बट ऐसा बंदा जब टीम में आता है वो सिर्फ अपनी स्किल के उस पर नहीं आता, वो एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है. वो अगर आपके ऐसा नहीं होता कि आपके 15 के 15 जो है वो अच्छी फॉर्म में होते हैं, उसमें आउट ऑफ फॉर्म भी होते हैं लोग. लेकिन ऐसा बंदा जब आपकी टीम में हो सो वो बात भी कर सकता है प्लेयर्स के साथ, वो उनको कॉन्फिडेंस दे सकता है, वो आपको कंडीशंस के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो कॉम्बिनेशन में हेल्प कर सकता है. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए हैविंग हिम इन द टीम ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है.
All right, folks, with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. But when we come back, more about this game. Don't go away. Keep watching A Sports, Then Sports, and the ARY Zap app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam और आप देख रहे हैं Sports, Then Sports in the ARY Zap app. And with me in the Pavilion, I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and Wasim Akram. हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड मुकाबला श्रीलंका. मैच बड़े ज़बरदस्त तरीके से श्रीलंका ने जीता है और अभी हम बात कर रहे थे इंग्लिश बैटिंग के हवाले से और श्रीलंकन बॉलिंग के हवाले से. मोइन, लेट्स टॉक अबाउट द पार्टनरशिप जो आपने देखी निशंका और समारा विक्रमा की. व्हाट अ ग्रेट पार्टनरशिप, व्हाट अ ग्रेट इनिंग्स बाय बोथ ऑफ देम. बिल्कुल. आई थिंक एक तो ऑब्वियसली जब स्कोर छोटा होता है तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांस होता है जीतने का. आराम से आप खेल के जीत सकते हैं. कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होता है और जिस तरह की बॉलिंग हुई उस पर चांस लिया है. नो डाउट कि इतनी कोई बुरी बॉलिंग नहीं थी इंग्लैंड की, बट उनको जहां मौका मिला उन्होंने प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि जल्द से जल्द हम स्कोर करके अपना रन रेट को भी अच्छा कर सके. आई थिंक आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप दोनों ने जिस तरह शॉट्स खेले. आई थिंक ग्रेट एग्जाम्पल फॉर इंग्लैंड ऑफ कोर्स के इंग्लैंड ने कहीं भी ऐसी कोशिश नहीं की अपनी पूरी बैटिंग में कि कहीं पार्टनरशिप बिल्ड की जाए. ऑल्दो दे हैव अ वेरी गुड स्टार्ट टुडे. उनका मिला था कि 45 रन का ओपनिंग स्टैंड मिला, लेकिन कहीं भी इस तरह की जो अप्रोच थी श्रीलंकन्स की यहाँ पे विदाउट गिविंग एनी चांस टू इंग्लिश बॉलर्स, वो आराम से मैच लेके गए और 137 की पार्टनरशिप बिल्डअप किए यहाँ पे. बहुत ज़बरदस्त. समारा विक्रमा का ये जो इनसाइड आउट ड्राइव जो मारते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है. आप कुछ कह रहे थे मिसबाह, रिमाइंड्स यू ऑफ थोड़ी सी झलक महिला जावेदने की आती है. उनकी इनिशियल जो फीट मूवमेंट भी है, वो भी कवर ड्राइव बहुत ही ज़बरदस्त मारते थे. इस तरह एल्बो, हाई एल्बो, और स्पेशली स्पिनर्स को जिस तरीके से इनसाइड आउट मारते हैं, दैट इज़ समथिंग स्पेशल. और इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, बहुत ही क्लासी शॉट्स मार रहे हैं, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं. और सबसे जो अच्छी चीज़ ये थी कि 2 आउट होने के बावजूद थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन थी उस टाइम पे, लेकिन आके उन्होंने अटैक किया, उन्होंने कोशिश किया कि जल्दी से जल्दी इस मैच को ख़त्म करें. सो दैट वाज बिग प्लस फॉर श्रीलंका. मैच से पहले नहीं पता था इन तीनों को ये बातें. ये बहुत अच्छी बात, ये एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस वाली बात है ये, क्योंकि मोइन वाहिद बंदे थे जिन्होंने कहा था श्रीलंका जीतेगा. उन्होंने बोला था, वो कह रहे हैं मुझसे पूरे शो में कुछ पूछते नहीं इसलिए मैंने श्रीलंका कह दिया था. देखो 36 दिन में एक दफा कहेगा तो मेरा मतलब है वो मुआवजा ही होना है फाइनली. वैसे जितना आपने हिसाब लगाया हुआ, आप ये बताएं कि फाइनल कौन जीतेगा. अभी मौके बताएंगे. वेल डन मोइन. वेल डन. श्रीलंका प्लेयर कौन सा बोला था जी? प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा प्रेशर डाला. प्रेशर डाला ये प्रेशर डाला. अरे तुसी जुड़ा ना, अगर जोची हो तो पूरी सही दसो. आपने जो रूट बोला था, वसीम ने बेयरस्टो बोला था और शोएब ने बटलर को बोला था कि ये तो कुछ ज्यादा तो फिर भी 30 कर आ रहा था कि आज वो बॉलर कोई आउट नहीं करेगा जो रूट को. मुझे क्या पता रन आउट हो गया. ओह, जायचे में गलती हो गई है. बेस्ट तो अच्छा है, नहीं थे 4 बजे आना पै जाना जी. ये आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. हमें बहुत जल्दी वापस स्टूडियो में आना पड़ा है. Well, you know, that's how it is. So there's not much batting क्योंकि टोटल इतना कम था और वो टोटल हो गया सारे का सारा. So there's really not much to say about it. But let's talk about the English bowling. What can England do from here in this World Cup? एक हमारा सेगमेंट आता है ना, उसमें उसके ऊपर बात करेंगे. देखें, ये सोचने की बात ये है कि डेविड विली 9वें नंबर पे है, आदिल रशीद 10वें पे और मार्क वुड जिसने पिछले मैच में 43 किया वो 11वें नंबर पे. अगर किसी ने मुझे कहा ना कि आदिल रशीद के 10 फर्स्ट क्लास 100 है तो मैं डंडा फाड़ लेना. बट वो आज रन आउट हुआ है. ये रिकॉर्ड आप नहीं बताया था उसे. कमेंट्री में जब बात करो, जब बात देख लेना ने कह दिया. उसको तो नहीं, मोइन को तो पता नहीं था लगना ना, मैं ही दसना सी. नहीं, लेकिन दुनिया च मैं लेके आया वापस. बिकॉज़ कमेंट्री करते हैं ना तो उसमें नहीं, कमेंट्री जब करते हैं तो वो बताते रहते हैं ना सारे कमेंटेटर कि 10 हैं, 10 सेंचुरी हैं, 10 हैं. 3 स्कोर नहीं करता जब हमें बैटिंग आती है. हकीकत है वाकई. All right. Trouble for English bowlers because even the bowlers were looking off color, Wasim. Obviously, then you don't have enough total to defend on a good deck. I mean, they got 2 wickets early on. थोड़ा बहुत बॉल घूमा है
but उसके बाद it was only a matter of time. David Both really the batters, bowled, and David really bowled well early on, but he's not sharp. He's not going to get 6 for 20, 5 for 15 kind of. Bowled well within his limit, within his range. दोनों तरफ swing कर रहा था, अच्छी length पे मारा था, but runs ही नहीं थे enough इस pitch में. Yeah, there was not enough runs. निसांका के बारे में एक दफा बात करते हैं. Shoaib, how do you rate him as a batsman? How has he, developed as a batsman over the years? I think over the years he's improving और अच्छी चीज़ उसकी सबसे ये है कि अगर वो अच्छी फॉर्म में है so then he utilizes his good form और वो consistently runs बनाते हैं. ये देखें फ्रंट फुट पे बहुत अच्छा खेलते हैं, बैक फुट पंच और ये जो शॉट खेला आदिल रशीद को 6 रन, फिर ये बहुत अच्छा कवर्स में शॉट खेला और पेस के अगेंस्ट आप देखें स्क्वायर ऑफ द विकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं. मार्क वुड को एक पुल पे मारा शॉट, फिर एक ड्राइव खेला, तो ही इज़ बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली. और जब आपके ऊपर वाले बैटर्स अच्छी फॉर्म में हो और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें तो फिर आप किसी भी टीम के अगेंस्ट कोई भी आपको टोटल मिला हो तो आप उसको अचीव कर सकते हैं. तो आई गेस हैविंग हिम एंड देन सदीरा, दे हैव बीन इन ग्रेट फॉर्म. बस कुशाल मेंडिस एक ऐसा है, उन्होंने जैसे शुरू किया था स्पेशली ही स्कोर्ड 100 अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके बाद ऐसा लगा कि ये कंसिस्टेंट रहेंगे बट वो नहीं रहा. मुझे लग रहा है कैप्टनसी की वजह से थोड़ा सा आया होगा, आई एम श्योर आया होगा. बट अगर ऐसी कोई चीज़ आए ऑफ कोर्स फॉर योर कंट्री आपको रहना चाहिए वहाँ पे, बट थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि मैं किस वे में ज़्यादा बेहतरी से टीम को हेल्प कर सकता हूँ. अगर तो उन पे एडिशनल प्रेशर आ रहा है तो आराम से कहना चाहिए कि किसी और से करवा लें, मुझे ज़रा खेलने दें. बैटिंग में थोड़ा सा सही बात है, प्रेशर नज़र आ रहा है, लेकिन कीपिंग आउटस्टैंडिंग कर रहे हो. बहुत अच्छे बड़े खूबसूरत कैचेस पकड़े अभी तक जो तीनों मैचेस के अंदर उन्होंने जो भी कीपिंग की है. आई थिंक प्रेशर अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों पर आता है, अफेक्ट करता है, कीपिंग पे भी बैटिंग पे भी आपके. आई थिंक इट वॉज लिटिल अनफॉर्चुनेट. ये इनका बड़ा पेट शॉट है, जिस शॉट पे वो आउट हुए. इसी शॉट्स के ऊपर साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत बड़े बड़े छक्के देखे थे हमने फर्स्ट मैच में, जहाँ पे 428 किया था साउथ अफ्रीका ने. तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले थे इस जगह पे स्पेशली. तो आई थिंक थोड़ा जो अभी मिसबा ने बात की थी, इस पिच के ऊपर हल्का सा बाउंस था, एक्स्ट्रा अनइवन टाइप पिच था, थोड़ा सा कभी बॉल निकलता था या कभी ऊपर जाता था. स्पंजी बाउंस यू कैन से. जो निसांका की बात की है मलिक ने, जो हमेशा ये बात करता है कि थ्रू अ प्रॉपर सिस्टम, जब वो श्रीलंका के लिए खेले हैं, डेब्यू किया, तो हिज एवरेज वाज 57 इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट. और नीचे से वो सारी क्रिकेट खेलते हुए आए और बड़ा हाईली रेट करते थे इनको. जैसे ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आए हैं तो वो चीज़ नज़र आ रही है कि व्हेन ही स्कोर्स कंसिस्टेंटली और राइट एट द टॉप. दूसरी तरफ से जहाँ कुशाल परेरा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी बैटिंग और इम्पॉर्टेंट हो जाती है श्रीलंका के लिए. Yeah, that it does. Actually, what would be an interesting thing to do, and I hope the producers are listening, और हमारे मज़र भी सुन रहे होंगे, मज़र जो हमें देते हैं सारे stats वगैरह, is to find out a little more about the first-class structures of different countries, including Sri Lanka, so that we can एक मुआवजा हम भी कर सकें कि किस तरह क्या चीज़ जो है वो पाकिस्तान को first class. I think club cricket is also very big. I don't know still is or not, but our days club cricket, school cricket and club cricket was massive there. So they have a pipeline that goes from school cricket into first class. I think so. Or club and then first class, right? I think so, yeah. Yeah, that should be really, really interesting. Because in our part of the world, Pakistan में school cricket is no more. Very rarely. I doubt any school tournaments या regular basis पे होते हैं. Schools खुद कोशिश कर लें तो कर लें, but मेरा नहीं ख्याल कोई system है यहाँ पे. पे पिछले 3 सालों में हुए हैं. They started that जब ये आपके प्रोविंसेस का सिस्टम था, उसमें काफ़ी क्रिकेट हुई है. सेंट्रल पंजाब में भी काफ़ी क्रिकेट हुई है. बट आई होप सो कि उसको ये कैरी ऑन करें, क्योंकि उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं लड़कों को. पीजेएल में भी कई आए हैं प्लेयर, और मेरे ख्याल में वहाँ पे अगर आपको कंसिस्टेंटली क्रिकेट मिलती है तो वो एक अच्छा आपकी बेस अच्छी बन जाती है. You know what motivated me properly to play cricket as a young kid? University ground जो है लाहौर में, वहाँ पे फाइनल था गवर्नमेंट कॉलेज का और इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस का, एंड आई वाज इन क्लास 7 maybe 6 maybe. So we used to walk from Mazang to university ground to play cricket with tennis ball, not on the main ground obviously, permission नहीं थी वहाँ थे, तो गुजर के ही बड़ा खुश होते थे, इतना घास. उसके पीछे एक छोटी ग्राउंड थी, वहाँ बास्केटबॉल का वो था सीमेंट का काइंड ऑफ ट्रैक, उस पर हम लगा के खेलते थे. तो उस दिन फाइनल था इनका. क्लब कॉलेज क्रिकेट बहुत बड़ी होती थी 80s में, 70s में, 80s में.
and it was a packed house. Yes. There were about 15,000 kids from both the colleges supporting their team. Players were big, so that motivated me. Late 90s तक भी बहुत अच्छा Late 90s तक भी. And this was a traditional, this was the biggest traditional rivalry of college cricket in Lahore. Islamia College versus Government College. Yeah. This was the. तो आपके वो आ भी गई है उसकी मदर की श्रीलंका स्कूल क्रिकेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट और their famous school is सेंट जोसेफ जहाँ से एंजेलो मैथ्यूज करुणा रत्ने वेलाले के वो सारे उसी पहले भी आए होंगे बट तो इसकी बात करें अमेजिंग थैंक यू मास्टर थैंक यू वेरी मच एजुकेशनल जो है वहाँ पे परसेंटेज बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आवर्स तो अगर हम स्कूल्स और कॉलेजेस की क्रिकेट से ज़्यादा फोकस क्लब क्रिकेट की तरफ करें तो हमारी बेहतरी आ सकती है मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि हम इसका ना कंपैरिजन कर सकें कि वो क्या सिस्टम चला रहे हैं जिस तरह हमें उस दिन एक दोस्त ने हमें इंडिया का पूरा भेजा था कि वहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है सो जस्ट वो विद दैट वी गोना टेक अनदर ब्रेक हियर ऑन द पेविलियन बट व्हेन वी कम बैक देयर इज मोर ऑन द अदर साइड Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the AI's app. Continued coverage of the ICC Men's World Cup. The news is that Sri Lanka have defeated England. Stop it, Wasim. Agha ji is being naughty and talking about Bata ji behind his back. I'm not doing anything. छोड़ दे. Okay. So yeah, हम लोग बात कर रहे थे. हम श्रीलंका के स्कूल क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे कि उनके फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर क्या है. इन द ब्रेक एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे साथ शेयर हुई है वो अभी आपके साथ शेयर करते हैं कुछ लम्हों में बट दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग मीनवाइल वसीम यू आल्सो गॉट अ मैसेज यस या आई गॉट अ मैसेज apparently from my teammate इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन में he's got my number अभी मैसेज में पढ़ देता हूँ उनको सलाम वसीम क्या हाल है हमाद रजा हेयर इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर पुरानी नारकरी फास्ट बॉलर Good to hear from you, buddy. I don't remember, it was long time ago, but good old days. Hope कि आप ठीक हो, family ठीक हो, and all the very best. Well, you just made Hamid Raza's day. I mean, he'll be very happy to hear that. Yeah. तमाम और सिविल लाइंस के प्लेयर्स जो हमें मैसेज भेजें हम शेयर करें यहाँ पर Absolutely. इनफैक्ट मेरी गवर्नमेंट कॉलेज की टीम के भी सारे इधर भेजें हम जरा शेयर करें सिर्फ प्लेयर्स ओनली कॉलेज सकलान भाई एमएओ कॉलेज से एमएओ कॉलेज उसके बाद जब बाद में आया था एमए कॉलेज बाद में became the cricket cricket में they won every year for years and years if I remember उनकी क्रिकेट भट्ट साहब थे वो देखते थे जी and he was very जी मैं 2 साल खेला उनके अंडर पंजाब अंडर 16 अच्छा हाँ जी बड़ी गालियाँ खाई हैं लेकिन सर अस्सलाम वालेकुम उसका फायदा बड़ा हुआ है acknowledging somebody उस्तादों को किसी भी चीज़ में is a very good thing to do. I think that's a very nice thing to do. मोइन तो मैसेज क्यों भिजवा रहे हैं हैं क्या मैसेज भेजे मैसेज यार आपके पवेलियन के शो पे मैसेज भेजते हैं आपने ग्रुप पे मैसेज भेजा यार शो करें आप जो और इन्फॉर्मेशन आती है इसी तरह आप लोगों के मैसेज अपने दोस्तों के आप लोग पढ़े जा रहे हैं मैसेज मेरा भी पढ़े मैं भी पढ़ ले अपनी आप अपना खुद ही पढ़ लेना क्या मैसेज है आपका पर मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया कोई इन्फॉर्मेशन हुई है क्या इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन ये है जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने फैसला किया है चलते वर्ल्ड कप में टीम मीडिया मैनेजर एहसन इफ्तिकार नागी को वापस बुला लिया जाए और उनकी जगह उमर फारूक कार्लसन को साहब को कल रवाना किया जाएगा परसों खेलेंगे भी कल खेलेंगे तो नहीं में भी मीडिया हैंडलिंग करेंगे बट ये एक इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करनी थी ये तैयार होगी जो इमेज हम जिसकी बात कर रहे थे साकिब फरशोरी साहब अगर आप बताएं तो मैं उसको राइट ऑन अच्छा ये उमर साहब का एक और भी लिखा हुआ है इज फेसिंग डिसिप्लिनरी एक्शन इन पीसीबी और वो टूर पे भी जा रहे हैं इस वक्त सॉरी क्या मतलब आई एम सॉरी आई डिडंट गेट कोई एक्शन हुआ उनके ऊपर डिसिप्लिनरी पिछले दिनों एक तरफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ और दूसरी तरफ उनको टीम की जी हां ओके आई हैव नो आईडिया बट दिस इज जस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एनीथिंग इज पॉसिबल एनीथिंग कैन हैपन एट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि एक इंसान पे अगर ये दुरुस्त है आई एम सॉरी दुरुस्त है आई एम स्पीचलेस सो हम कह रहे थे ब्रेक में हम क्रिकेट की बात कर रहे थे स्कूल क्रिकेट की बात कर रहे थे श्रीलंका की तो मुनीब गुज्जर 999 आपका एक्स हैंडल है और अचानक एक तस्वीर उन्होंने शेयर की है एंड लुक एट दिस ये स्कूल बुक की तस्वीर है ये बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही लेकिन मैं पढ़ देता हूं लुक एट दैट ये एक ही स्कूल ईयर की बुक है और इसमें
लेफ्ट पे ऊपर जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है वो सनत जयसूर्या है, उसके बाद राइट पे ऊपर जो है वो रोशन मनामा है, फिर ये सना नायके हैं, हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? सना नायके, सना नायके हैं बिल्कुल, या एंड अर्जुना राणा टुंगे हैं लेफ्ट पे नीचे, और फिर साथ में ब्रेंडन क्रूपो, ये विकेट कीपर बैट्समैन होते थे। दिस इज स्कूल उनके एक ही साल के स्कूल की, कैन यू इमेजिन दैट? I mean, Roshan Manama, Jayasuriya, I mean, Tunga was one of the greatest captains Sri Lanka ever produced, and a top player, Sanat Jayasuriya, who started that trend in one-day cricket, go over the top in first 10 to 15 overs. What a player, a match winner, 300 in Test cricket as well, 300, I don't know, 60 odd, he got runs. और ये एक साल का उन्होंने ब्रेंडन क्रूपो मानामा अगेन another gutsy player, top player, great guy off the field too, and then Brandon Krupu who also got 200 I think in Test cricket as well. जय सूर्या का नाम आया तो मुझे स्टोरी याद आ गई जी। जास्ते भाई जी, जास्ते जी। हाँ, टेस्ट मैच चल रहा था फैसलाबाद, इंजमाम भाई कैप्टन थे और जय सूर्या साहब जो है ना वो हमें बैट उन्होंने शोल्डर पे रखा हुआ था, इधर छिक्का और उधर छिक्का। अच्छा जी, अब ना वो 200 के आसपास थे, 200 होने वाला था उनका, तो नया बॉल आने वाला था जो 80 ओवर्स के बाद आता है। तो अब शोएब भाई ना जोर लगाया हुआ था उन्होंने, तो ना थोड़ा सा ना रिवर्स हो रहा था, तो इंजी भाई ने पूछा जी शेबी, कह रहे हाँ मैं करूँगा, अच्छा लेकिन नया गेंद ले लो, फ्रेश है ना? हाँ फ्रेश है। नया बॉल आया, आगे पहला ओवर किया, 2 छिक्के इधर। कह रहा माइन किसी और नु लो आज। ये दिस इज ये राइट, दिस इज ये। उस टाइम कोई भी करता यही होना था। वो तो सनत जयसूर्या when he would start going, I mean it was impossible to stop the guy. जी मोइन, मैं सोच रहा था कि द वे फॉरवर्ड इंग्लैंड के लिए वो हम शोएब से पूछ रहे हैं। शोएब क्या कहते हैं? वे फॉरवर्ड इज वेरी सिंपल, दे स्टिल हैव 4 more games, नो डाउट दे have games against like Pakistan, Australia, Netherlands, strong teams हैं, और ये है कि they still have a chance to qualify in the last 4. But जिस तरह कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, I guess they all should sit together, especially that think tank, और ये सोचना चाहिए कि हमारे जैसे वसीम भाई ने उस दिन भी बोला था कि जो बैटर्स हैं और जो बॉलर्स हैं वो स्पेशलिस्ट जो भी इस कॉम्बिनेशन में बन सकते हैं वो बनाने की कोशिश करें, और एज अ लीडर यू जस्ट हैव टू गिव कॉन्फिडेंस टू योर प्लेयर्स, यू आर ऑलरेडी इन द वर्ल्ड कप, अब यही हैं जिनमें से आप बेस्ट कर सकते हैं। राइट दोस्तों, और इसके साथ ही हम लेते हैं एक वक्फा, बट ब्रेक के बाद आपका फेवरेट सेगमेंट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, द वे #ask the pavilion. That's how we're going to go about it now. So, अपने तमाम सवालात कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करना शुरू कर दिए सोशल मीडिया पे, हैशटैग इस्तेमाल कीजिए, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, और हम अपने एक्सपर्ट से आपके सवालात पूछेंगे और आपकी कमेंट्स शेयर करेंगे। Don't go away, keep watching Sports and the Otherwise app. We'll see you on the other side. Alright जनाब, #ask the pavilion का सिलसिला शुरू करते हैं राइट हियर इन द पवेलियन, और आप लोगों के सवालात जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं हमारे पास, एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। यू हैड अ क्वेश्चन दैट यू वांटेड टू, और शुड आई जस्ट स्टार्ट? did. Yeah, okay. Holy horses. Alright. एम मूसा खान का क्वेश्चन है, मिसबा से, मेरे से भी है, बट मिसबा से, if I'm saying, why are we playing Quaid-e-Azam Trophy matches on highway pitches? How will we be able to find players from Sena tours? Is there no one in PCB thinking about it? Aren't we going towards further doom? Good. देखिए, बहुत पुराना एक मसला है पाकिस्तान का पिचेस के बारे में। इंग्लैंड टूर, जब इंग्लैंड यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट खेलने आई तो उस वक्त भी ये सारे सवाल हुए। हम कोशिश करते हैं, और मेरे ख्याल में इंस्ट्रक्शंस भी यही होती हैं कि सपोर्टिंग पिच बनाएं, लेकिन एंड ऑफ द डे अभी फाइनल में भी सपोर्टिंग पिच मींस? सपोर्टिंग पिच मींस कि जहाँ सब के लिए कुछ ना कुछ हो, आपके फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिले, थोड़ी पेस हो, बाउंस हो, उसके बाद स्पिनर्स को टर्म मिले, और ऑब्वियसली जो भी ऐसी पिच होगी फॉर इंस्टेंस फर्स्ट क्लास सीजन से पहले whoever runs the first class cricket in cricket board, can't he sit with all the groundsmen, have a proper day long discussions कि what sort of square do you have, आप किस तरह की पिचेस तैयार कर सकते हो, बजाय कि उसको बताएं कि ये ऐसी करो, अगर वो नहीं बना सकता तो क्या कर सकते हो? इस पे एक दफ़ा नदीम से मेरी बात हुई थी। अच्छा। जो इन्होंने स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए थे उसमें
नदीम का कहना ये था, जिस तरह भी बात की ना कि सपोर्टिंग पिच होनी चाहिए, कि फर्स्ट डे आपके बॉलर्स को थोड़ी सपोर्ट मिले, तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि 2 mm ग्रास छोड़ी जाए पहले दिन उस पिच के ऊपर, थोड़ी ग्रीन ग्रास विद लाइक उसकी जो हाइट हो 2 mm तक हो, तो जो पहले दिन सपोर्ट करेगी, इवेंचुअली थोड़ा सा बैटिंग को सपोर्ट करेगी, थर्ड डे स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी। तो हमें प्रीवियसली भी अगर हम देखें तो हमें प्लेयर ऐसे ही मिलते हैं, लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जिक्र करते हैं इस चीज़ का, जी हमारे इतने ज़्यादा रन्स हो रहे हैं। रन्स पिचेस की वजह से नहीं हो रहे, जो अब से ये बॉल चेंज हुई, कोकाबरा आती, कोकाबरा थोड़ा सा आपको भी पता है वैसे, मैं पुराना होने के बाद ऐसी फ्लैट पिचेस के ऊपर बहुत मुश्किल होता है टर्न करना। पहले ड्यूक्स का बॉल यूज़ हुआ करता था, या लोकल ग्रेस का बॉल यूज़ हुआ करता था, जिसकी सीम बहुत हैवी होती थी, यू नो, उससे टर्न भी मिलता था आपके स्पिनर को। अब स्पिनर्स इस वजह से भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि इस कोकाबरा का सीम ख़त्म हो जाता है इन पिचेस के ऊपर, जब ये सेकंड डे फ्लैट होती है थोड़ी पिचेस, यू नो, फास्ट बॉलर आके करते हैं इस्तेमाल, पहले दिन तो अच्छी रहती है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे तो कोकाबरा ही लगता है ना जी, इंटरनेशनल पे कोकाबरा लगता है। That's why they are playing with एसजी का बॉल लगता है, इंग्लैंड में ड्यूक्स का बॉल लगता है। देखिए कंडीशंस डिफरेंट ज़रूर, पिचेस डिफरेंट ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन एक और चीज़ है, आपको जिन मंथ्स में हमारा सीज़न होता है डोमेस्टिक का, रोटेशन ऑफ मैचेस वो भी ऐसी जगह पे होने चाहिए जहाँ पे वेदर आपको अलाउ करता है, यहाँ पे कि हीट में होना चाहिए, थोड़ा सा सर्दी में होना चाहिए। तो कंडीशन जो है उसके साथ साथ वेदर जो है उसमें भी आपका प्लेयर जो है वो हर टाइप के वेदर में खेलना चाहिए, ताकि वो रेडी हो। जैसे डिफरेंट कंडीशंस में खेलेगा, डिफरेंट वेदर्स में भी। आप इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पे सर्दी होती है, बल्कि आपको एक दिन में 3 डिफरेंट जो है वो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि जहाँ पे आप जो है यूज्ड टू। तो ऐसे मैचेस भी, यूटिलाइजेशन ऑफ योर मैचेस भी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके एरियाज़ है पाकिस्तान में वो सही से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए उनकी। और ये जो मलिक की बात है, इस वेदर की वजह से अभी आप देखें कि अभी तक गर्मी जो है अच्छी खासी गर्मी है, और आप फाइनल देखा है शायद, मैंने तो थोड़ा फॉलो किया उसको, ठीक ठाक ग्रास थी पिच पे, पहले दिन मॉइस्चर भी था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वेदर ऐसा है 600 रन्स बने, एक टीम जल्दी आउट हुई है, दूसरे 600, और दूसरी इनिंग्स में भी कराची ने इतने लंबे रन्स किए हैं। तो मुझे लगता है वो जो मॉइस्चर या थोड़ी बहुत सपोर्ट होती है वो बहुत जल्दी ख़त्म होती है और बहुत जल्दी पिचेस जो है फ्लैट हो जाती है। ठीक है, आसिफ अली चिरानिया आपका एक्स हैंडल है, और आपने कहा है कि रियल शोएब मलिक इज एब्सोल्युटली राइट अबाउट डाइविंग ऑन स्ट्रीट्स। आई हैव विटनेस्ड Moin Khan diving on streets in tennis cricket, one of his very old friends from C Block Cricket. By the way, you all are awesome. ये आपके दोस्त हैं? मुझे नहीं पता, इन्होंने उस वक्त देखा हो जब किसी दोस्त ने धक्का दिया होगा मुझे। इनको आप जानते हैं? कहते हैं मैं इनका पुराना दोस्त हूँ। क्या नाम बता रहे? आसिफ अली। आसिफ अली, यस, वन ऑफ द फ्रेंड फ्रॉम सी ब्लॉक, यस, बिल्कुल। कितने ठंडे तरीके से आपने कहा वन ऑफ द, कोई एंथुसियाज्म भी नहीं। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है भाई, नाम के मुझे याद आ रहा है जी। मैंने आपका कमिटमेंट लेवल देखा, आपने जरूर डाइव मारी हो। हाँ बिल्कुल, उनको अच्छे तरीके से। कामरान अली KAM 007_TW, ये आपका एक्स हैंडल है। आप कहते हैं क्रिकेट पंडिट्स, नॉट Pavilion, who had been quite vocal for several years that Pakistan doesn't play the brand of cricket which England plays. Pakistan lacked modern day white ball cricket approach and blah blah blah. I'm wondering what they would say now after England's performance. नहीं तो फिर इस तरह 150 पे आउट हो जाएं जैसे वो हुए, उन्होंने चेंज तो नहीं किया ना कुछ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। 270 280 अच्छी पिच पे हम लोगों ने करते ही रहना है, तो आई गेस मॉडर्न डे को अडेप्ट करें। शायद हम लोग अभी नहीं वहाँ पहुँच पा रहे, लेकिन एटलीस्ट ऐसा ट्राई करें जैसे वो 150 पे आउट हुए हैं, वो सीख जाएंगे। और ये सेम टीम है जो मतलब जिसने सेट की थी ना ये सारी चीज़ 2015 के बाद। तो या फिर ऐसी अप्रोच हो गई, आप 100 125 150 में आउट हो जाओ, लेकिन जिस दिन फिर लगो तो वो जाओ आप 350 पौने 400। एंड आई एम श्योर कि इस परफॉर्मेंस के बाद वहाँ पर इंग्लैंड में खलबली मचेगी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के अंदर। क्यों वसीम? दे आर गोइंग टू गो बैक, दे आर गोइंग टू से कि ओके लेट्स आई मीन वो मैं नासिर का मैं ट्वीट देख रहा था, पढ़ रहा था, मुझे मेरे दोस्त ने भी जो आया था अभी, नासिर ने जो कहा है, नासिर हुसैन, इट्स सच अ लेम एक्सक्यूज कि जब टीम हारती है तो आप कसूरवार अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को ठहराते हो। कह रहे यही डोमेस्टिक क्रिकेट जब ये चैंपियंस बने हैं 50 ओवर के और वाइट बॉल T20 के, तो यही सिस्टम था।
So when you don't qualify, you blame the wrong areas, wrong. So he's saying that blame the players. They're out of form. Basically, that's what he's saying. Probably, yeah, that's what he's saying. What he's saying. The players have not delivered. I think system. that's not the system. And of course, this system is. He said maybe there's a less 150 over cricket खेली है, but कह रहे बाकी भी जो professionals हैं वो they don't have to play 50 over at that level. They can learn the technique or anything for T20 format and longer version of the game. That's what Nasir is saying. लेकिन वसीम भाई ये फर्क तो पड़ता है जो जैसे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, या some of the players जो ऑलरेडी इस फॉर्मेट में डेवलप हुए हैं, दे आर मोर एक्सपीरियंस, उनको इस अच्छी तरह पता है. अब जिन टीमों को जैसे पाकिस्तान में मैं कहूँगा कि जो प्लेयर इस्टेब्लिश हैं, बहुत खेले हैं वनडे क्रिकेट, जो कि ज़्यादा नहीं है इस टाइम पे, उनके लिए तो इतना मसला नहीं है. लेकिन जो आए ही नए हैं जैसे सूद शकील, वो चौथा पांचवा उसका मतलब मैच वर्ल्ड कप में हो रहा है. इसी तरह अब्दुल्ला शफीक है, बिल्कुल नए हैं, जो उन टीमों के लिए ज़रूर ये प्रॉब्लम है कि उनको वो क्रिकेट उतनी मिले नहीं. आपको याद है वसीम भाई 7-8 लड़के 92 वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे थे, बट इस टीम में सिमिलर कंडीशंस मिल रही हैं उनको, जो हम अपनी कंडीशंस ही टाइप है जैसे पाकिस्तान में पिचेस होते हैं, तो उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है. आई थिंक मुझे जो ऐसा लगता है वो जो कमिटमेंट लेवल है ना, वो हर टीम का कम है. जो भी अंडर परफॉर्म कर रही है अभी नज़र आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी टीम है जैसे स्पेशली इंग्लैंड की, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आउटस्टैंडिंग ये खेलेंगे इस टूर्नामेंट में, करीब नहीं आने देंगे किसी टीम को. बट जो पर्सनल एक कमिटमेंट लेवल अपने आप से इंसान का होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे होते हो, मेंटली आप तैयार होते हो, फिजिकली आप तैयार होते हो, वो लैक लग रहा है मुझे थोड़ा सा. Alright, with that we're going to take a break, but when we come back more, #AskThePavilion. Don't go away. Alright, welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app, and I've got Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram with me. #AskThePavilion का सिलसिला जारी है. ये अगला सवाल है साकिब हुसैन, आपका एक्स हैंडल है साकिब42. साकिब हुसैन पूछ रहे हैं, our players are so much vocal on social media, putting unnecessary pressure on themselves rather than focusing on performance at the ground. See other players like Team India have hardly seen anyone tweeting in mega event like this, like we are doing. Why? ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो क्रिकेटर हैं वो सोशल मीडिया पे क्यों स्ट्रेट वे आ जाते हैं, स्टेट वे. I think they don't. Their managers do. Who's apparently thinking, they think out of the box, but that's not thinking out of the box. The idea is big tournaments lay low, just chill, take a pill. You don't have to tweet straight after the game, either win or lose. Doesn't matter. But that's not happening, I suppose. मंसूर अहमद खान फेसबुक से है हमारा #AskThePavilion का सिलसिला. मंसूर अहमद खान का सवाल है, पाकिस्तानी bowlers are not bowling according to the field along with inconsistent line and length. Don't you think there is a serious communication problem between captain and the bowlers? This is for you, Wasim Akram. Anybody can answer it. कि उनकी बॉलिंग ठीक नहीं हो रही, रिदम में नहीं आ रहे. अपेरेंटली कहते हैं कि हारिस रऊफ को नया गेंद नहीं आता, पिछले 4 साल से पाकिस्तान टीम के साथ है हारिस, बट आई सपोज टुमारो इज द डे. आर बी ऑल्सो हेयरिंग दैट हसन अली गॉट अ फीवर. आई होप ये गलत न्यूज़ हो, बट इफ दैट्स ट्रू देन ऑब्वियसली वसीम विल प्ले. And who will bowl the new ball then? Either Wasim or Rauf. They just need one good spell. I mean, communication होगी, meetings होती होंगी. We are not saying कि वहाँ पे सारे वो अपना पूरा काम कर रहे होने, बाबर and his team, homework, meetings, watching videos, whatever the word is, जो भी है वो पूरा कर रहे होंगे काम. All right, जनाब. अब्दुल रहमान आपका एक्स हैंडल है अब्दुल रहमान 5616. अब्दुल रहमान का सवाल है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट दी है टीम के हवाले से और बाबर की कप्तानी के बारे में, क्या इस टाइम वो देनी चाहिए थी और क्या वो सही है? आपको क्या लगता है? जेंटलमैन, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो लोग देख रहे हैं उनको, जिनको ना पता हो, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि जी प्लीज़ टीम ऑलरेडी काफ़ी दिल बर्दाश्ता है, कौम जो है वो मायूस ना हो, कौम जो है वो अपने लड़कों को और अपनी टीम को जो है पहला पैराग्राफ बिल्कुल ठीक था. हाँ, फिर उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो टीम को सपोर्ट करें, कप्तान को सपोर्ट करें, और अभी भी बहुत से मैचेस जो हैं, 4 मैचेस जो हैं, अहम मैचेस जो हैं वो बाकी हैं, ये है वो है. और फिर उसमें ये भी लिखा गया है कि जो है वो मुकम्मल इख्तियारात दिए गए थे चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल
उल हक और कप्तान बाबर आजम को कि वो अपनी टीम लेकर जाएं, अपनी टीम बनाएं और ये करें, और ये वर्ल्ड कप के बाद देखा जाएगा कि आगे के क्या फैसले होने हैं। तो टाइमिंग बहुत गलत है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था सर। और जो आप लास्ट पैरा की आप बात कर रहे हैं आप लोग, आई थिंक ये क्लियरली शोज के ब्लेम डाला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसी नज़र आ रही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करता हुआ अगर नज़र नहीं आ रहा, जो कि रिकॉर्ड पे अगर देखा जाए तो ऐसे ही लग रहा है। आई थिंक ये फेस सेविंग यहाँ पे अपनी करना चाह रहे हैं क्रिकेट बोर्ड क्लियरली, और ये ब्लेम सेलेक्टर्स पे और कप्तान पे डाला जा रहा है। अगर वो लेके गए, नेशनली जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और नेशनली आखिरी में जब पाकिस्तान टीम वापस आएगी तो उनसे क्वेश्चन होना चाहिए, कौन क्वेश्चन करेगा। बट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इस तरह के स्टेटमेंट्स नेशनली नेगेटिविटी क्रिएट और ज़्यादा करते हैं, और इस चीज़ से कप्तान भी प्रेशर में आ सकते हैं इस वक्त। यहाँ पे उनसे ऑलरेडी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो रही जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ जो लड़कों से, इसी वजह से उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डाउन लग रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने देखा वो बिल्कुल शैटर्ड हुए हुए नज़र आ रहा है, और फिर उसका रिफ्लेक्शन टीम पे आता है। तो आई थिंक एक टाइमिंग बहुत गलत थी, और स्पेशली लास्ट पैरा जो इख्तियारात की बात की गई है, सबको पता है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी टीम चीफ सेलेक्टर और हमारे कप्तान की मर्जी से, और बिल्कुल ऐसा इख्तियार देना भी चाहिए क्रिकेट बोर्ड को। मगर मेरा एक सवाल है मिसबाह, एंड आई विल ब्रिंग दिस टू यू, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या ज़रूरत थी ये स्टेटमेंट इस वक्त देने की? वो सही है या गलत है, वो एक अलग ही पहलू है, तो मेरा ख्याल है मोइन ने कह दिया, मगर इस वक्त क्या जरूरत थी? I think it's before he answers his PS to me is a communication gap. I doubt ये चेयरमैन को पता भी होगा. तो किसने कर should be a certain I'm sorry if you're the chairman SOP, but yeah, everything has to not, everything can't just go ज़्यादा चेंजिंग की, हर चीज़ में, हर डिपार्टमेंट में चेंजेस कर दी हैं। मोइन भाई, प्लेयर्स की NOC जो है, सिर्फ NOC इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, वो भी जब जाती है तो चेयरमैन साहब अप्रूवल देते हैं, तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है तो इसमें हाँ, वो मेरा नहीं ख्याल कि अप्रूव किया, बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द टाइमिंग ऑफ इट। ये क्या है, मतलब ये क्या स्ट्रेटजी है मिसबाह? ये नौकरी बचाने की स्ट्रेटजी है, किसी और के ऊपर मलबा गिराने की स्ट्रेटजी है, कि किसी हम ब्लेम डाल सकें अभी से, तो इसकी बुनियाद रखनी शुरू करो? वो जवाब दे सकेगा, वो खुद चेयरमैन है टेक्निकल कमेटी का। नहीं, मेरे ख्याल में ठीक बात की आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बोर्ड की तरफ से नहीं होना चाहिए था। वो कि हमने भी शुरू में कहा है, क्योंकि हमसे सवालात हो रहे थे इस चीज़ के बार बार कि भाई टीम सेलेक्ट कर दी, इन्होंने कर दी, तो मैंने उस टाइम यही कहा था कि भाई हमारा टीम सिलेक्शन से कोई वास्ता नहीं है। और वो इंजी भाई ने जब टीम सेलेक्ट की तो उन्होंने कहा था कि भाई कमेटी का टीम सिलेक्शन से कोई वो नहीं है, ये सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन है और टीम मैनेजमेंट का है, या बट क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं। ऐसे टाइम पे हमें भी कोशिश करनी है, और स्पेशली क्रिकेट बोर्ड को तो कोशिश करनी है भाई, वी आर स्टिल इन द टूर्नामेंट। अगर हम 4 मैच वेरी मच पॉसिबल, क्यों नहीं जीत सकते हम? एक मैच की बात है, ऑस्ट्रेलिया ने कैसे कम बैक किया, अगर हम करते हैं we need to think positive। अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर टीम कैसे सोचेगी? अच्छा, एंड अगेन मैं कहता हूँ कि हम सेमीफाइनल पहुँचे ना पहुँचे बिल्कुल अलग बात है। आई थिंक 4 गेम्स हैं, वी शुड फोकस कि हम जितनी ज़्यादा गेम जीत सकें, ताकि कोई एक एक अच्छे विनिंग नोट के ऊपर द जर्नी ऑफ द वर्ल्ड कप शुड बी। अगला सवाल है जनाब देसी जैक RJ, आपका देसी जैक ने पूछा है हमसे आज से पवेलियन, इज इट ऑल my question is why ICC does not enforce home and away kits when both teams have similar color kits? Apart from Australia and Netherlands teams, all other teams have same shade of blue and green. I get this word, it's definitely a first world problem. Yeah. DJ आपके लिए, आपका नाम मैंने पढ़ा है, पूरा नाम ले नहीं सकते आपका। देसी जैक जी। Don't know, it's complicated. Teams carrying 2 kits home and away in one country, luggage वैसे उनका इतना होता है, I don't think so it's logistically possible. All right. एक और सवाल है, दानियाल अहमद का सवाल ले लेते हैं। दानियाल अहमद 33 आपका X का हैंडल है, और वो कह रहे हैं to all 4 captains, what is the difference between Butler and Ian Morgan as a captain? I guess that's what the question is. So all 4 captains. वसी भाई, for me, I guess it's the body language as a leader. और Ian Morgan, leader should lead from the front. जैसे उसकी एग्जांपल ये है जो उस दिन भी दी थी कि जो 2019 का वर्ल्ड कप था अगेंस्ट बांग्लादेश, उनका मैच था मैनचेस्टर में। So a lot of the players they were under pressure
they were thinking against Afghanistan के राशिद को कैसे खेलना है. He stood up as a leader and he said, I'll take him on in tomorrow's game. So I guess it's just the body language. Even though इतने बड़े event में जाते हैं, as a leader you are under pressure because the country they have high hopes from you as a leader. तो वो pressure ज़रूर अंदर होता है, but वो आपके face पे नहीं आना चाहिए. Importantly, Morgan जो plus था उसका वो था कि वो अपने लड़कों से loyal था और direct था. Remember that incidents happened twice or thrice with Alex Sales disciplinary का. बिल्कुल. तो वंस तीसरी दफ़ा उसका हुआ तो उसने कहा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड / सेलेक्टर्स को कि लुक आई डोंट वांट दिस प्लेयर. मेरा इसने टीम का जो ट्रस्ट है वो तोड़ा है. जब बाल का टेस्ट हुआ था तो वो उसका पॉजिटिव आ गया था. तो टीम का ट्रस्ट, हालांकि ही वाज अ वेरी गुड, स्टिल इज़ अ वेरी गुड प्लेयर. ही गॉट पिक्ड अप व्हेन मॉर्गन रिटायर्ड. उसके बाद वो पिक हुआ है. वो अलग बात है, पिक होने के बाद वो रिटायर हो गया है. जब उसने खड़ा होना था तो मॉर्गन ने अपने सही उस पे वो खड़ा रहता था and the whole team was behind him. That's what you call leading from the front. एक और सवाल ले लेते हैं. मसूद इनका सवाल है. मसूद साहब पूछ रहे हैं कराची से, What changes do you think Pakistan team should make against South Africa? Should Wasim Jr., Fakhar Zaman और सलमान अली आगा be given a chance in this game? मसूद भाई कराची से जी. Chance is not the right word. This is not like क्लब क्रिकेट के हर एक को खिलाना है 15 में से. जो रिक्वायरमेंट है, जो पिच है, फिटनेस के लिए कौन से अवेलेबल हैं, कम्बिनेशन में कौन सा बॉल आता है, वो अभी तक लोग लगे हुए हैं. आई अंडरस्टैंड यू लव योर क्रिकेट. कोई कह रहा है जमान नू खिड़ा दो, कोई कह रहा है इब्रार नू खिड़ा दो. अगर क्रिकेट पसंद है थोड़ा सा लॉ भी पता होना चाहिए आप लोगों को. अब मुझे 30वां दिन हो गया यहाँ, अगर अभी तक नहीं समझ आ रही कि इब्रार और जमान नहीं खेल सकते भैया. वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स में है, तो इंजर होगा. हारिस, जमान और तीसरे जो है इब्रार, वो कोई अल्लाह ना करे इंजर्ड हो. जो 15 का स्क्वाड है, अगर कोई इंजर्ड होता है फिर आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, उनमें से कोई खेल सकते हैं. बिल्कुल सही है. राइट जनाब. और इसके साथ ही हम लेते हैं एक और वक्फा राइट हियर ऑन द पेविलियन. देखते रहिए, मिलते हैं इस वक्फे के बाद. यू वाचिंग ए स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap ऐप. सी यू आफ्टर द ब्रेक. Welcome back to the Pavilion, and well, you're watching Sports and Sports in the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023, and let's see what do we have in store for you tomorrow. कल आप लोगों के लिए एक और मैच लेकर आ रहे हैं, और ये बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है. पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका. चेन्नई से 1:30 बजे आपकी खिदमत में हमने ये पेश करना है, और हम कल 12 बजे के बजाय सुबह 11:30 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला है. पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, एंड देयर इज अ लॉट. आपके बहुत सारे हैशटैग आज द पेविलियन में भी आज सवालात पाकिस्तान के हवाले से थे, कल के मैच के हवाले से थे. तो कल सुबह इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे. सो जॉइन अस देन, एंड मे बी यूल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस. वी आर गोना हैव इन डेप्थ डिस्कशन बिफोर द गेम, एंड देन ऑफ कोर्स आफ्टर द गेम, एंड वी आर होपिंग टीम पाकिस्तान, well, they'll break their streak and get moving in this tournament. With that, Shoaib Malik, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. मोइन, आपको बेताबी से जाने की जल्दी थी आज, तो अब आप जा सकते हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक्स. आज ने आपने बहुत सारी अपनी मीटिंगें जो है कैंसिल की हैं. श्रीलंका को थैंक ना करें, इंग्लैंड को बददुआएं देके सारा स्केड्यूल अपसाइड डाउन कर दिया. थैंक यू. मिसबा, बंदी मुबारक हो. आप आज बंदी खाने जा रहे हैं. आपने हमें जाने की जल्दी है, इन्होंने इधर ही आज चौकीदारी करनी है. अच्छा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बट आपको मंदी पे जाने की जल्दी है. आप पिछले 2 घंटे से कह रहे हैं मुझे मंदी पे जाना है, मंदी पे जाना है, मंदी पे जाना है, मंदी पे जाना है. तो आपको आपकी मंदी की दावत मुबारक हो. अकेले अकेले जा रहे हो, पुत्र हजम नहीं होगी इंशाल्लाह. मेरा चले बस. ठीक है. वसीम, थैंक यू वेरी मच. लाइक ऑलवेज, you are going to be in the gym all night long. We know that, at least at 6 a.m. or something like morning, that. Morning. Morning. चलो भाई, legends are made like that, not a joke. इन्होंने वॉक पे जाना है, ले जाए. 6:30 पिक करूं किसको? आपको. क्यों वॉक पे चलते हैं? ये प्लान बना ले, हम दोनों साथ ही जाते हैं रोज. ये प्लान बना ले खुदा हाफिज करके. हाँ, एक्चुअली इनको व्हील चेयर में बिठा के वो सोते जाएंगे, आप इनको लेके वॉक पे निकलें. गुड आइडिया. 8-bit Gulkan, good night.